Hello children, welcome to your English video class. Children, you know that we are doing chapter 2 of your English textbook. I hope you are doing the reading practice also, because I have read this chapter for you in the previous videos. पिछले वीडियो में पिछले 2 या 3 वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा, साथ में पढ़ा. आई रेड फॉर यू, यू मे हैव रिपीटेड आफ्टर मी. देन आई एक्सप्लेन यू द चैप्टर. तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. ट्राई अगेन. दिस इज़ चैप्टर 2 एज आई टोल्ड यू. चिल्ड्रन, डू रीड दिस चैप्टर, क्योंकि आप को रीडिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. मैंने आपके लिए एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस पढ़ा है. आप किसी भी चैप्टर वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हैं, अगर आपको रीडिंग में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो रीड ज़रूर कीजिए. हर चैप्टर को कम से कम 2-3 बार ज़रूर पढ़ के देख लीजिए. चिल्ड्रन, in previous video I completed the chapter and I had started word meaning of the chapter. इस चैप्टर का मैंने वर्ड मीनिंग स्टार्ट करवाया था, पर उससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को, फिर मैं कंटिन्यू करूँगी वर्ड मीनिंग. एज आई ऑलवेज डू, आई रिवाइज द चैप्टर फर्स्ट. चिल्ड्रन, this chapter, try again. As the name says, we should try till we succeed. जब तक कि हम सफल नहीं हो जाते, जब तक कि हम चाहते हैं वो हमें मिल नहीं जाता, तब तक हमें कोशिश करती रहनी चाहिए. हमें बार बार कोशिश करना चाहिए जब तक कि हम सफल नहीं हो जाते. चिल्ड्रन, इन दिस स्टोरी देयर वॉज अ किंग नेम्ड रॉबर्ट ब्रूस. He was king of Scotland. He was brave, he was wise, and there was another king of England, whose name is not mentioned in the chapter, but that king, he wanted to make Scotland his part of his country. He wanted to drive away Robert Bruce, and he wanted Scotland to be part of England. So keeping this view, keeping this in mind, he attacked Scotland many times, 6 times, almost 6 times. Robert Bruce, who was a brave king, he fought with English army 6 times but defeated. Reason being, English army was very large. The king of England, he used to attack with a large army, with a great army, and Scottish army was quite small in comparison to English army. But Robert Bruce bravely fought war with English army, but each time he was defeated. He was defeated 6 times. Finally, he had to run away in the forest to save his life. And there he hid himself in a cave. He ran away in a forest and he hid himself in a cave to save his life. While he was in the cave, he felt very tired and very sick. He was tired of fighting, and he thought that there is no use trying anymore. He gave up all the hopes. Giving up all the hope means होता है कि बिल्कुल उम्मीद छोड़ देना और ये मन में फीलिंग आ जाना कि अब कुछ नहीं हो सकता. ओके, इट्स सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, डिस्पेयर बोलते हैं जिसको. एकदम हताश हो गया था, निराश हो गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता. देयर इज़ नो यूज ट्राइंग एनी मोर. थिंकिंग दिस, ही वॉज लाइंग इन द केव. व्हाइल लाइंग, ही सॉ अ स्पाइडर. He saw a spider who was trying to climb the roof of the cave. The spider was trying to climb the roof of the cave, but every time he climbed, he failed. He used to fell down. Spider used to fell down. बार बार वो गिर जा रहा था, बार बार वो रूफ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, but he used to fell down. But he did not give up. He kept trying climbing the roof. वो बार बार गिर रहा था, लेकिन बार बार कोशिश कर रहा था. वो रुका नहीं. जितनी बार गिरता था उतनी बार वो कोशिश कर रहा था रूफ पे चढ़ने की, और तब तक करता रहा जब तक कि वो रूफ पे पहुंच नहीं गया. फाइनली ही
climbed up the roof. Seeing this scene, King Bruce cried in excitement. He exclaimed, "Wow!" मतलब जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो उनको बहुत शॉक लगा, बहुत सरप्राइज हुए कि अरे मतलब देखो कितनी बार उसने ट्राई किया, फाइनली ही रीच द रूफ. Now this scene of spider climbing the roof motivated him, inspired him, and he thought that if a small insect could not give up, why should I? एक छोटे से इंसेक्ट ने जब हार नहीं मानी तो मैं क्यों मानूं? I will try again. I will fight war again and I will win. He said I will win. उसने डिसीजन लिया रॉबर्ट ब्रूस ने कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर युद्ध लड़ूंगा इंग्लिश आर्मी से और मैं जीतूंगा. दिस टाइम ही मेड डिसीजन दैट ही विल विन. होता है ना कि आदमी मन में ही जो सोच लेता है फिर वही होता है. अगर मन में हमने सोच लिया कि हम जीतेंगे तो जीतेंगे. अब आप सोचोगे कि फिर पहले वो 6 टाइम्स क्यों हारा, क्या उसने तब मन में नहीं सोचा था? बिल्कुल सही है. उसने जब इंग्लैंड की जो आर्मी है, इंग्लिश आर्मी की, जब उसने देखा होगा तो हो सकता है उसके मन में आया होगा कि अरे इतनी बड़ी आर्मी, भले ही उसने ब्रेवली ट्राई किया लेकिन मन में कहीं उसके होगा कि इतनी बड़ी आर्मी और मेरी आर्मी छोटी है, हम शायद नहीं जीत पाए, ये मन में ज़रूर होगा. लेकिन इस बार उसने मन में क्या सोचा कि मैं जीतूँगा. और फिर वो केव से बाहर आया. He came out of cave and he gathered his people and then the army marched toward battlefield. He fought war with English army and he won, और वो जीत भी गया. So the moral of the story is we should try until we succeed. जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए. ठीक है. और ये सिर्फ रॉबर्ट ब्रूस के लिए लेसन नहीं है, ये हम सबके लिए एक लेसन है कि हमें तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि हमें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती. जो हम चाहते हैं वो हमें जब तक नहीं मिल जाता हमें तब तक कोशिश करते रहना चाहिए. सो चिल्ड्रन, दिस वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, दिस वाज द स्टोरी ऑफ द चैप्टर, एंड लेट्स कंटिन्यू विद द वर्ड मीनिंग. न्यू वर्ड्स मैंने बोला था हम डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं बोलेंगे, वी विल कॉल इट न्यू वर्ड्स and I will write meaning for those words. Children, in the previous video I gave you some words. In today's video I will continue further. इसके आगे का हम करेंगे, word meaning करेंगे. So you can open your copy, you can directly write in the copy or you can write it in rough copy or you can take screenshot, whichever you find it convenient. Okay. So let me write here WORD word and MEANING. Okay. Children, in the previous video I wrote meaning of brave, then meaning of defeated, wise, given up. ये वर्ड्स के मैंने मीनिंग पिछले वीडियो में लिख दिए थे. Now I will write hope. Next word is, fifth word is HOPE. Hope. Children, meaning of hope. Hope का मतलब क्या होता है? Feeling of wanting something good. A feeling of wanting something good to happen. Something good to happen. A feeling of wanting something good to happen. मतलब कुछ अच्छा होने वाला ऐसा फीलिंग रहना मन में कि कुछ अच्छा होगा. ठीक है. That is called hope. Then another word is roof. 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 Children, roof can be the top part of something like building, room or cave. इस तरह की किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ के इनसाइड का टॉप पार्ट. ओके. सो आई राइट इट
the highest part of the inside of something. जैसे एग्जाम्पल में जैसे बिल्डिंग हो गया, BUILDING, या रूम हो गया, या केव हो गया, एक्सेट्रा. द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ समथिंग. किसी जैसे ये कमरा है तो इस कमरे का जो सबसे हाईएस्ट पार्ट है दैट विल बी कॉल्ड एज, उसको हम बोलेंगे रूफ. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज सरप्राइज्ड. SURPRISED. सरप्राइज्ड का क्या मतलब होता है? टू बी अमेज्ड, टू बी एस्टॉनिश्ड. ऐसे फ्लेबरगास्ट भी बोलते हैं, लेकिन फ्लेबरगास्ट बहुत आपके लिए टफ हो जाएगा वर्ड. वी कैन से अमेज्ड. ठीक है. अमेज्ड, AMAZED, अमेज्ड. या एस्टॉनिश्ड भी बोल सकते हैं, ASTONISHED. एस्टॉनिश्ड और अमेज्ड सरप्राइज का मतलब होता है. देन वी हैव वर्ड gathered. Eighth is gathered. 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 gathered का मतलब क्या होता है? gathered का मतलब होता है came together in a group. came, TOGETHER. इसको पढ़ते हैं together. come together in a group. come together in a group. gathered का मतलब इकट्ठा करना, to come together, that is called gathered. Then the word is marched. Number 9 is MARCHED. marched. मार्च का मैंने बताया था कि जब सोल्जर लोग चलते हैं एक साथ, उनके हाथ एक साथ, उनके पैरों का मूवमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड मार्चिंग. सो वॉक लाइक सोल्जर बोल सकते हैं. वॉक, WALKED. इसको पढ़ेंगे हम वॉक्ड. ओके. वॉक्ड. हियर L इज़ साइलेंट. यहाँ पर L को स्पेलिंग में तो लिखेंगे, लेकिन इसको जब बोलेंगे वर्ड तो ये साउंड नहीं आएगा, L का साउंड नहीं आएगा. ठीक है. वॉक्ड, विल से वॉक्ड. वॉक्ड लाइक अ सोल्जर. लाइक अ सोल्जर. SOLDIER. walked like a soldier. Now let's have another word. इसको मैं इरेज कर दूँ अगर आपने देख लिया है तो. I hope you have taken the screenshot. Now number 10. Okay, number 10 is battlefield. BATTLE. battle. FIELD. battlefield मतलब जहाँ पर युद्ध किया जाता है, जहाँ पे वॉर लड़ा जाता है. A place where battle is fought. A place where BATTLE. बैटल मतलब युद्ध या लड़ाई या वॉर जिसको बोलते हैं, जो दो किंग लोगों के बीच में होता था पहले. अ प्लेस वेयर बैटल इज फॉट. इट इज कॉल्ड बैटलफील्ड. देन
Number 11 is COURAGE. करेज का क्या मतलब होता है? करेज का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ माइंड, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फेस सम डेंजर, दैट इज कॉल्ड करेज. तो एबिलिटी टू फेस डेंजर बोल सकते हैं, ABILITY, एबिलिटी टू फेस डेंजर. अब एबिलिटी ऑफ माइंड बोल सकते हैं, एबिलिटी ऑफ बॉडी बोल सकते हैं. टू फेस डेंजर, खतरे को का सामना करने की का साहस, दैट इज कॉल्ड करेज. ओके, सो चिल्ड्रन, दीज आर द वर्ड मीनिंग ऑफ द चैप्टर. ओके, ये वर्ड मीनिंग हो गया आपका. नाउ लेट मी इरेज दिस. और जो भी वर्ड मैंने कराए हैं दे आर कंसीडर्ड एज न्यू वर्ड ऑफ द चैप्टर. फिर उनके मैंने आपको मीनिंग भी बता दी. ठीक है, अब हम करेंगे इस चैप्टर का कॉम्प्रीहेंशन. विल डू कॉम्प्रीहेंशन, द एक्सरसाइज पार्ट विच इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन. Let me erase this properly. COMPREHENSION. अब देखेंगे, इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 19. आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है कॉम्प्रीहेंशन. और इसमें फर्स्ट पार्ट है कॉम्प्रीहेंशन का. जो ए पार्ट है वो क्या है? टिक द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर को टिक करना है. ऑप्शंस हैं and you have to take the correct option. So let's do it. A TICK, tick the correct option. Yeah, tick the correct answer actually है. Okay, first one. Robert Bruce was the king of blank. Robert Bruce was the king of, एंड हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. एक है ENGLAND, इंग्लैंड. सेकेंड ऑप्शन इज स्कॉटलैंड. नाउ यू नो द आंसर. रॉबर्ट ब्रूस वॉज द किंग ऑफ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड. रॉबर्ट ब्रूस जो थे वो कहाँ के राजा थे? इंग्लैंड के थे या स्कॉटलैंड के थे? सो यू नो द आंसर दैट रॉबर्ट ब्रूस वॉज किंग ऑफ स्कॉटलैंड. इंग्लैंड के राजा का नाम चैप्टर में नहीं बताया गया है. ओके, नंबर 2. द किंग ऑफ Scotland was blank. ऑप्शन है ब्रेव, TIMID. चिल्ड्रन, ब्रेव का मतलब होता है करेजियस, जिसके में हिम्मत होती है, बहादुर होता है. टिमिड का मतलब होता है जो बहुत दब्बू सा होता है, डरा सहमा सा रहता है ना. कायर भी बोल सकते हैं, दब्बू, डरा हुआ, उनको हम बोलते हैं टिमिड. तो जिसके में हिम्मत नहीं होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है टिमिड. तो जो किंग ऑफ स्कॉटलैंड थे, स्कॉटलैंड के जो राजा थे, वो ब्रेव थे या टिमिड थे? चिल्ड्रन, ही वॉज ब्रेव. यस,
king of Scotland was Robert Bruce and he was brave. Next, number 3. King Bruce was defeated defeated in war dash. आंसर ऑप्शन है हमारे पास 6 times या 7 times. King Bruce was defeated in war 6 times. King Bruce was defeated in war 6 times. 7th time तो वो जीत ही गए थे, है ना. 7th time तो वो जीत गए थे. So 7th time he won the war. So he was defeated 6 times. अब यहाँ पर आपको ये लिखना भी है, जो ब्लैंक है ना उसमें लिखना भी है. Robert Bruce was the king of Scotland. ये लिखना है इसमें, ठीक है. He was brave and here you will write 6 times. Robert Bruce was defeated 6 times. Then 4th one, या मैं इरेज कर देती हूँ अगर आपने देख लिया है तो, और इसको इरेज करूँगी फिर 4th वाला लिखूँगी. Now 4th one. The spider in the cave was ready to. The spider in the cave was ready to blank. ऑप्शन क्या है? गिव अप, और ट्राई अगेन. स्टूडेंट्स, वो जो स्पाइडर था उसके बारे में है ये कि द स्पाइडर इन द केव वॉज रेडी टू. वो क्या करने को तैयार था? गिव अप मतलब हार मारने को तैयार था, या वो ट्राई करने को तैयार था. चिल्ड्रन, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, हमें तो पता है कि वो स्पाइडर रेडी था ट्राई करने के लिए, क्योंकि वो बार बार ट्राई करा और बाद में वो सक्सीड भी हुआ. सो ट्राई अगेन, और हियर यू विल राइट ट्राई, AGAIN. So the spider in the story, he was ready to try again. Next. Okay. Now I will give you few. This take the correct option from my side. 4 statements are given in the chapter, in the exercise, and some I will give from my side. अब इसमें 5th one हम लिखेंगे. King Bruce ran away to blank. ऑप्शन है mountain. Second option is forest. King Bruce ran away to mountain और forest. वो भाग कर कहाँ गए? माउंटेन पे चले गए या फॉरेस्ट में चले गए? He ran away to
forest. Yes, King Bruce ran away to forest. Number 6. Robert Bruce hid himself in a blank. ऑप्शन है हमारे पास केव और टनल. ओके, वो अपने आप को उन्होंने कहाँ छुपाया? एक सुरंग में, एक टनल में, या कि एक केव में? चिल्ड्रन, वी नो दैट ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव. यस, he hid himself in a cave. तो हमने किया 6. Now two more I'll give. If you have noted down this, if you have taken the screenshot, then I will erase this. उसको फिर मैं erase कर दूँगी. ठीक है, 4, 5, 6 हमारा हो गया. Now 2 more I will give. Total we will have 8. Tick the correct options. Number 7. The insect in the cave was option है an ant or a spider. केव के अंदर जो इंसेक्ट था जिसको देख कर केक मोटिवेट हुए थे, वो एक एंट था या कि स्पाइडर था? चिल्ड्रन, इट वॉज अ स्पाइडर. यस, सो यू विल राइट हियर अ स्पाइडर. यहाँ पे आप लिखोगे अ स्पाइडर. ओके, नेक्स्ट इज, ये था हमारा 7. Number 8. Number 8. The king of Scotland won dash. ऑप्शन है हमारे पास, 1 in war, 1 7th time, won the war. Sorry. The King of Scotland won the war in 7th time और 8th time. 7th बार में वो जीते या 8th time में जीते? The King of Scotland won the war in 7th time और 8th time. Children, he won the war in 7th time. क्यों? 6th time he was defeated. 6 बार हारने के बाद वो जंगल में भाग गए थे.
फिर 7th टाइम जब उन्होंने लड़ाई की, वॉर किया, तो फिर वो जीते। सो ही वन द वॉर इन 7th टाइम में वो जीत गए। सो ये हमारा हो गया कॉम्प्रीहेंशन का ए पार्ट, टेक द करेक्ट आंसर। Children, now the next one is answer the following question. ये हमारा नेक्स्ट है, and that we will do in the next video. अगले वीडियो में उसको कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और एक बाकी जो एक्सरसाइज है उसको ग्रेजुअली हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, ठीक है। We will meet now in the next video. Thank you.